वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर टुडेज ज्योमेट्री सेशन। तो मैं आप सभी का फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ आज के ज्योमेट्री सेशन में। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो पिछला हमारा सेशन था उसमें हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर एंड व्हिच आर द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल्स। तो इस सेशन पे हम start करने वाले problem third because we had already solved the all problems from the practice set 3.5 in the previous session. So we are going to start with the first question, that is the MCQ of the problem set 3. So the question is, first choose the proper, appropriate or the correct alternative of the following, that is MCQs. So the first MCQ of the problem set 3, that is, if two sides of a triangle are 5 cm and 1.5 cm, then the length of the its third side cannot be. तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड्स 5 cm और 1.5 cm है तो नीचे दिए गए हुए चार लेंथ में से which one is cannot be the side of that triangle. So यहाँ पे आपको दिया है S1, suppose we have the S1 equal to 5 cm, S2 equal to 1.5 cm, and we have to identify which one cannot be the side of the triangle having the side 5 cm and 1.5 cm. तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखता हूँ। तो ऑप्शन A is 3.7, B that is 4.1, C 3.8 and D 3.4. Now these are the given lengths and we have to identify which one cannot be the side of the triangle having side 5 cm or 1.5 cm. याद रखिए आपको ये बताना है कि कौन सी लेंथ इन चारों में से इस ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन आपको पता है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, थर्ड प्रॉपर्टी, that is what the sum of the length of any two sides of a triangle is ever greater than the third one. तो आपको पता है कि ट्रायंगल के दो साइड की सम हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होती है। तो किस तरह से यहाँ देखते हैं, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लार्जेस्ट है इन सभी से। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1.5 को हर किसी से अगर ऐड करके देखें और if the addition is greater than the 5 cm, then we can say that the all lengths whose sum with the 1.5 is greater than 5 can be the sides of the triangle. But if the sum of any length out of the four is less than the length 5, then we can say that one cannot be the side of the triangle. तो यहाँ पे ऐड करके देखते हैं 1.5 plus 3.7, that is 6.2. Okay, next, sorry, 5.2. 5.2 is greater than 5. Next, 1.5 plus 4.1. 5.6 also greater than 5. 1.5. So 5.3. It is also greater than 5, and 3.4 plus 1.5. But now the sum of these two lengths is less than 4.9 is less than 5, so we can say that the D option is the correct because 3.4 cannot be the side of the triangle having side 5 cm and 1.5 cm. Next, second MCQ. The second MCQ is what? In triangle PQR, if angle R is greater than angle Q, then which one is the correct option of the following? तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि ट्रायंगल PQR में एंगल R एंगल Q से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यू हैव द ट्रायंगल, सपोज वी हैव ट्रायंगल PQR, दिस इज एंगल R and which is greater than the angle Q. Angle R greater than angle Q, therefore we can say that side PQ is greater than side PR. Side PQ greater than side PR by the second property of inequality, that is if two angles of triangle are unequal, then the side opposite to greater angle is greater. तो यहाँ पे greater angle R है तो उसकी opposite की side PQ
स्मॉलर एंगल क्यू के अपोजिट की साइड पी आर से बड़ी होगी, और यही आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन सेकंड दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। लास्ट एमसीक्यू थर्ड एमसीक्यू, व्हाट इज द क्वेश्चन? इन ट्रायंगल TPQ, T equal to 65 degree, angle P equal to 95 degree, then which of the following is true statement? आपको एक ट्रायंगल TPQ दिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ट्रायंगल TPQ, whereas angle T equal to 65 डिग्री आपको दिया है, एंगल P equal to 95 डिग्री दिया है, ठीक है। यहां पे हम P लिखेंगे, यहां पे T लिखते हैं, T equal to 65 degree, P equal to 95 degree, then which of the following statement is true? तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे एंगल Q का मेजरमेंट हम फाइंड कर सकते हैं 20 डिग्री। अब साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, सॉरी एंगल साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये जस्टिफाई करेंगे। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा PQ लेस देन TQ, PQ लेस देन TQ, ये करेक्ट है या नहीं ये हम वेरीफाई करेंगे। देखिए PQ लेस देन TQ, ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका। लेकिन PQ जो है वो 65 के अपोजिट की साइड है और एंगल T दैट इज 95, सो TQ ग्रेटर देन PQ हो सकता है, सो PQ लेस देन TQ, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट है। PQ लेस देन TQ, यही करेक्ट ऑप्शन है। अब दूसरे ऑप्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज देयर आर ओनली 3 MCQs in the problem set third, and the second problem is that is in triangle ABC, or triangle ABC is an isosceles in which AB equal to AC and segment BD and segment C are the medians, show that BD equal to C। तो आपको कहा गया है कि ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस है जिसमें उसकी दो साइड इक्वल है, AB equal to AC, ABC, and the given is BD and C are the medians, BD and C are medians। तो यहां पे इनको इरेज करके हम यहां पे मीडियन ड्रॉ करेंगे। So BD and C, so these two are the medians of triangle ABC, whereas AB equal to AC and we have to do that BD equal to AC। तो हमें BD equal to AC प्रूव करना है। तो जाहिर सी बात यह है कि आपको BD equal to AC प्रूव करने के लिए पहले एंगल ABC इक्वल टू एंगल AC भी प्रूव करना पड़ेगा, दैट इज बाय द आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। हमको एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC मिलेगा, इट मींस एंगल EBC इक्वल टू एंगल DCB, क्योंकि BD इक्वल टू C प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल BEC और ट्रायंगल CDB, इन दो ट्रायंगल्स की आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी पड़ेगी। तो वो किस तरह से कर सकते? BC में कॉमन साइड है, एंगल EBC इक्वल टू एंगल DCB आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम की वजह से आएगा, और यहाँ पे AB इक्वल टू AC है तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ AC आएगा, एंड E एंड D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, देयरफॉर B इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड CD इक्वल टू हाफ ऑफ AC आएंगे। तो इस तरह से हमको EB इक्वल टू DCB मिलेगा। उसके बाद हम इनकी कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से यहाँ करेंगे सॉल्यूशन? इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये आपको गिवन में दिया है, दिस इज गिवन, सो मल्टीप्लाई बाय हाफ, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 1/2। तो इस इक्वेशन को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर वी गेट हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, लेट द स्टेटमेंट 1, इसे हम स्टेटमेंट 1 कंसीडर करेंगे। नाउ बट BD and C are the medians, ये medians है, therefore हम यहाँ पे लिख सकते हैं that is BE is equal to half of AB, statement number 2, and next one CD is also half of AC, statement number 3। अब स्टेटमेंट 1, 2 और 3 से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं B इक्वल टू CD। तो क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ AC
इक्वल है, लेकिन AB का हाफ B है और AC का हाफ CD है। Therefore from 1, 2 and 3 we can say from 1, 2 and 3 that is B equal to CD. B equal to CD, that is statement number 4. इसको हम statement number 4 कंसीडर करते हैं। अब यहां पे देखिए, so now again AB equal to AC, this is given. Therefore we can say that angle ABC equal to angle ACB by isosceles triangle theorem. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम की वजह से क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज मींस दैट इज EBC और एंगल EBC इक्वल टू एंगल DCB, एंगल EBC इक्वल टू एंगल DCB। इसका रीजन हम लिख सकते हैं, दैट इज E between B एंड नेक्स्ट वन A between D between C। तो इस रीजन की वजह से EBC इक्वल टू DCB आया। इसको हम स्टेटमेंट नंबर 5 कंसीडर करेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस, नाउ इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल दैट इज CDB, in triangle BEC and CDB we can write that is sec EB equal to DC, sec EB equal to sec DC from statement number 4, क्योंकि यहां पे 4 में हमने प्रूव किया है EB equal to DC। नेक्स्ट एंगल EBC equal to angle DCB from statement 5, and last one that is BC equal to BC, sec BC equal to sec BC, common side, therefore we can say that triangle EBC is congruent to triangle, or maybe ट्रायंगल हमने यहाँ पे BEC लिया है तो EBC भी चलेगा इन ट्रायंगल, therefore ट्रायंगल EBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB बाय SAS। अब दोनों SAS से कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे लिखेंगे, therefore we can write that is segment BD congruent to segment C by CSCT, corresponding angles of congruent triangles। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने यहाँ पे प्रूव किया है। आपको कहा गया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में उसके दो साइड AB और AC इक्वल है, लेकिन BD और C ये जो दो सेगमेंट है वो मीडियंस है, तो वो मीडियंस कॉन्ग्रुएंट दिखाए, तो यहाँ पे हमने उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए आप। So in the question number 3, the provided information is in triangle PQR, side PQ is greater than side PR, then and the bisector of angle Q and angle R intersect each other at point S, then prove that what that side QS is greater than side SR। तो आपको यहाँ पे फिगर में PQ greater than PR दी है और आपको कहा गया है कि QS greater than SR आपको प्रूव करना है। तो बहुत आसान है, क्योंकि QS greater than SR प्रूव करने के लिए पहले आपको ट्रायंगल जो QSR है उस ट्रायंगल QSR के दो एंगल, इसका मतलब एंगल SRQ और एंगल SQR में इनइक्वालिटी आपको शो करनी पड़ेगी, और वो इनइक्वालिटी इस तरह से होनी चाहिए, एंगल SRQ जो है एंगल SQR से अगर ग्रेटर होता है तभी साइड SQ साइड SR से ग्रेटर हो। तो वो किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि PQ ग्रेटर देन PR है, इसका मतलब एंगल जो PRQ होगा वो एंगल PQR से बड़ा होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो अब इसको इस स्टेटमेंट को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा हाफ ऑफ PRQ ग्रेटर देन हाफ ऑफ PQR, तो इससे ग्रेटर देन मिलेगा। अब आप जानते हैं कि QS बाइसेक्ट एंगल PQR है, इसका मतलब एंगल SQR एंगल PQR का हाफ होगा। उसी तरह से SR और RS जो है वो एंगल SRQ का एंगल PRQ का
बाइसेक्टर है तो एंगल SRQ एंगल PRQ से हाफ होगा। अब ये तीन स्टेटमेंट आपको मिलते हैं, इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल PRQ और हाफ ऑफ एंगल PQR में से हाफ ऑफ एंगल PRQ PQR से अगर ग्रेटर है तो एंगल SRQ भी SQR से ग्रेटर आएगा। और फिर से प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी को अप्लाई करके हम ये बता सकेंगे QS ग्रेटर देन SR। वो कैसे, यहाँ पे देखें। तो पहले इन ट्रायंगल PQR we have PQ greater than PR. This is given. PQ greater than PR. Therefore, we can write what angle PRQ is greater than angle PQR. Why? Angle opposite to greater side. Angle opposite to greater side is greater. तो ग्रेटर साइड के अपोजिट का एंगल ग्रेटर होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय हाफ, 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलेगा देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल PRQ इज आल्सो ग्रेटर देन द हाफ ऑफ एंगल PQR। अब इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 करा देंगे। नाउ बट यहां पे लिखेंगे RS बाइसेक्ट एंगल PRQ, RS बाइसेक्ट एंगल PRQ, therefore angle SRQ is equal to half of angle PRQ। क्योंकि आपको पता है एंगल बाइसेक्टर उस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है और वो जो न्यूली फॉर्म्ड एंगल्स होते हैं उनमें से हर एक एंगल ओरिजिनल एंगल के हाफ होता है। So angle SRQ equal to half of angle PRQ, statement number 2. Also, now QS bisect angle PQR, QS bisect angle PQR, therefore हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं that is angle SQR is half to the angle PQR. So statement number 3. अब 1, 2 और 3 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे PRQ का हाफ PQR के हाफ से बड़ा है, तो PRQ का ये जो हाफ है SRQ वो PQR का हाफ SQR से बड़ा होगा। तो therefore from 1, 2 and 3 हम स्टेटमेंट 1, 2 और 3 से ये कह सकते हैं एंगल SRQ is greater than angle SQR, angle SRQ greater than angle SQR। so therefore हम ये भी कह सकते हैं therefore QS is greater than SR, QS is greater than SR because since side opposite to greater angle, side opposite to greater angle is greater angle is greater। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है QS ग्रेटर देन SR। तो इसके अगले वीडियो में हम जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आगे देखते हैं। तो ये सेशन में ये जो सेशन है वो हम यहाँ पे क्वाइट करते हैं। चलिए।